Greetings to all of you in Jesus' name. प्रभु यीशु के मौल्यवान नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं। Today we have a women's special program. और आज हमारे बीच में महिलाओं के लिए एक विशेष सभा है। We have our beloved sister, Sister Catherine Selvaraj. आज हमारे बीच में हमारी प्रिय बहन कैथरीन सेल्वराज है। She's come all the way from Chennai to share her encounter with Jesus. और वो चेन्नई से यहाँ आई है और वो कैसे उन्होंने प्रभु यीशु को देखा और उनके साथ संकल्प हुआ है ये बताएंगे। She is here to testify what the Lord has done in her life and her family. और आज वो यहाँ हमारे बीच में है कि वह यीशु के बारे में हमें बताए और यीशु ने उनके जीवन में जो कुछ किया है एक गवाही बनकर। Come, let us sing a song and worship the Lord before we get into the message. आइए हम प्रभु की आराधना और स्तुति करें संदेश के पहले। Give thanks with a grateful heart, and give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give Let's welcome Sister Catherine Selvaraj and Sister Renuka. आइए हम बहन कैथरीन सेल्वराज और सिस्टर रेणुका का स्वागत करेंगे। Praise the Lord. जय मसीह की आप सभी को। I'm so grateful to God for God has given this opportunity to share my testimony before you. परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसकी कृपा के कारण आज मैं अपनी गवाही आपको बताना चाहती हूँ। Our God is a God who even today He is alive. हमारा परमेश्वर वह परमेश्वर है जो आज भी जीवित है। Hallelujah. हालेलुया। As you hear this testimony, definitely Holy Spirit of God will transform your life. जैसे आप इस गवाही को सुनोगे पवित्र आत्मा आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगा। I am Catherine Philip. मेरा नाम है कैथरीन फिलिप। I am from Chennai. मैं चेन्नई से हूँ I am the third daughter of my parents. और मैं अपने माता पिता की तीसरी संतान हूँ I am from Neyveli. और मैं नेवेली इस शहर से हूँ। I was born in a very, very traditional, godly and religious Brahmin family. और जब मैं बड़ी हुई मैं इस प्रकार के घराने से आती हूँ जो एक धार्मिक हिंदू ब्राह्मण परिवार है। I was so attached to the godly worships. और मैं इस प्रकार देवियों की आराधना करती थी। I love to do it. और मुझे यह करने में बहुत अच्छा लगता था। I was very proud of because I am worshipping the idols, the 33 million idols in this world. और इसका मुझे बहुत घमंड था कि मैं 33 करोड़ परमेश्वर की आराधना करती हूँ। I was studying. और जब मेरी पढ़ाई लिखाई होती थी, other than my studies, I always used to be in the godly things. और मेरे
पढ़ाई के अतिरिक्त मैं हमेशा परमेश्वर के मंदिर में ही उसका काम करती रहती थी। I am not interested in any other thing that going out and playing unlike any other children could wish to do. दूसरे बच्चे जैसे उस उम्र में खेल कूद करते थे, पर मैं उस प्रकार की लड़की थी जो हमेशा परमेश्वर की आराधना या मंदिर का काम करते रहती थी। We used to have a very good puja room in our house. और हमारे घर में एक पूजा करने का स्थान था। Always used to worship the Lord and chant mantras and sing so many things which represents the idol worship. और मैं घर में हमेशा उस मंदिर के स्थान पर रहती थी और हमेशा परमेश्वर के लिए गीत गाते रहती थी। Not only that, when morning and evening, both the times I used to go to the temples around my place. और सुबह और शाम मैं दोनों समय जहाँ पर भी कोई मंदिर मुझे दिखाई देता मैं वहाँ जरूर प्रवेश करती। Every day, Monday one temple, Tuesday one temple, like all the weeks, all the time I will be available in the temple. आप जब भी देखो हफ्ता के 7 दिन, सोमवार हो मंगलवार हो, हर एक दिन में हमेशा सुबह और शाम कई अलग अलग प्रकार के मंदिरों में जाती। I used to come around in Navagrahas and I used to do so many idol worship in different ways which will bring a great joy in my heart. और जब मैं इस प्रकार परमेश्वर की आराधना करती वह मुझे बहुत सारा आनंद देता। Whenever I hear the word Jesus or whenever I see the people who are worshipping Jesus, the hatredness will build up within me. I don't have any words to explain. और जब भी मैं सुनती कोई यीशु का नाम लेता या यीशु के लोग मुझे मिलते, मुझे उनके लिए मेरे अंदर एक तरीका का नफरत पैदा हुआ था। I didn't know why this hatredness is developed within me whenever I heard the word Jesus or whenever I see the people who are worshipping Jesus. मुझे यह कारण पता नहीं कि मेरे भीतर ही भीतर जो भी यीशु के बारे में बात करते या यीशु के ये ख्रिस्ती ईसाई लोग हैं उन्हें देखकर मेरे अंदर एक प्रकार का नफरत क्यों जागृत हो उठा। The reason because when I used to see the life of the Christian people, इसका कारण क्या था? क्योंकि मैं जब ईसाइयों का जीवन को देखती थी, I used to see them on Sundays going to the church and the rest of the days they are seeing their lives being full of unrighteousness and one side fighting at the home and other qualities I didn't find very good in them. और जब भी मैं क्रिस्ती लोगों को देखती तो मैं देखती कि वो हर रविवार के दिन कलीसिया में जाते और फिर घर आ जाते और वहाँ लड़ाई झगड़े करते और एक सही जीवन नहीं जीते। उन सभी लोगों से एक नफरत सी पैदा हुई। Again when they go to Sunday they are going and asking the forgiveness from the Lord, again going into they are living in the worldly life. और हर रविवार वे जाते चर्च में और वहाँ पर वो पश्चाताप करते और चर्च से आने के बाद फिर से वही बुरा जीवन जीते थे। I thought we are more better than these Christian people. और मुझे ऐसा लगा अरे हम तो इस ईसाई लोगों से तो बहुत बेहतर है। We are living a very holy life. और हम तो अच्छे पवित्र जीवन जीते हैं। We thought that we are so godly. और हमें लगा कि हम तो इतने नीतिमान और धर्मी हैं। I had a friend in my school days by name Mary. और मेरे जो स्कूल के समय मेरी एक दोस्त थी उसका नाम मेरी था। She loved me a lot. और वो मुझसे बहुत प्रेम करती She थी। used to often tell me the love of Jesus to me. वो हमेशा मुझे प्रभु यीशु के प्रेम के बारे में बताती। One side I used to hear the love of Jesus through her. और मैं एक तरफ उससे परमेश्वर के प्रेम के बारे में सुनती। But I was not able to accept that love of Jesus in my heart. पर मैंने यीशु के प्रेम को मेरे हृदय में कभी भी नहीं स्वीकारा। The reason being what I said, I am not able to see the righteous life the Christian people living. क्योंकि मैंने जो क्रिस्ती लोग जिस प्रकार का धार्मिक जीवन जीना चाहिए मैंने उस प्रकार के लोगों को देखा ही नहीं। So I used to argue with her. और हमें हमेशा उनके साथ वाद विवाद करती। Whenever she says about the love of Jesus, और जब भी वो प्रभु यीशु के प्रेम के बारे में मुझे कुछ बताती, I used to argue with the goddess which I have been brought up. और मैं हमेशा उसके साथ वाद विवाद करती। Oh,
how much of goddess we have. We have a goddess for our studies, for the wisdom, for the wealth, for the health. So many god and goddesses we do worship. और हमारे तो कई अनेक भगवान है, एक पढ़ाई के लिए है, एक काम के लिए है, और हर चीज के हमारे एक एक भगवान है। I was feeling very proud of myself. और उसी के बारे में मुझे बहुत घमंड था। The more they say the love of Jesus, the more hatredness developed before me. जितने वो कोई भी आकर मुझे यीशु के प्रेम के बारे में बताता, मैं उन लोगों से उतना ही ज्यादा नफरत करती। This continued in my life. और ऐसे ही मेरे जीवन में होता रहा। Again in my college days, same things happened. और जब मैं कॉलेज पढ़ने लगी तभी ऐसा ही हुआ। The more the godliness developed in me. और मेरे अंदर और धार्मिकता बढ़ती गई। During even our vacation, we choose to go to the places where the temples are available in different villages and towns and cities. और जब इस स्कूल की छुट्टियां पड़ती तो हम हमारा सारा परिवार दूसरे दूसरे गांव में जाता जहां पर परमेश्वर के मंदिर है, और उस मंदिर में हम प्रवेश करते। I was so satisfied with which God I am worshipping. और जो भी परमेश्वर की सेवा मैं कर रही हूँ, मैं उससे बड़ी तृप्त हूँ। I was thinking very low of these Christian people. और मैं जो ये ईसाई लोग हैं उनके बारे में बहुत उन्हें नीचा देखती थी। I used to think why this Jesus is forgiving them. These people are asking forgiveness. Something is not changing in their life which pleases anybody. हाँ, मैं इस प्रकार सोच विचार करती थी कि ये किस प्रकार के लोग हैं, ये माफ़ी मांगते हैं पर फिर से इनके जीवन में कोई बदलाव ही नहीं है, वो उसी प्रकार का जीवन फिर से जीते हैं। And Jesus is forgiving them. और यीशु तो हमेशा उन्हें माफ करता है। So I developed that more hatredness towards this Jesus. तो मेरे अंदर यीशु के लिए और नफरत बढ़ती गई। How could a God could be like this? एक परमेश्वर ऐसे कैसे हो सकता है? This continued. और ये चलता रहा। After my college was over, मेरे कॉलेज समाप्त होने के बाद for searching for a job, I shifted my place to Chennai. मैं नौकरी के तलाश में चेन्नई चले गई। I was living in my uncle's house and I found a job. और वहाँ मैं मेरे चाचा के घर में रहती थी और वहाँ मुझे एक नौकरी मिल गई। That was the time my parents, they were in search of a boy for me. और उसी समय मेरे माता पिता मेरे लिए एक लड़का ढूंढ रहे थे। And almost every marriage, the marriage was fixed for me. और मेरा विवाह तैयार हो चुका था। The boy was in my same community, same Telugu speaking guy, and he was a Brahmin. Both the families agreed for the marriage. और मेरे माता पिता ने जिस लड़के को ढूंढ लिया था मेरे लिए, वह हमारी जाति का था, वह एक हिंदू ब्राह्मण था, वो तेलुगु व्यक्ति था। So everything was fine. और सब कुछ अच्छा ठीक चल रहा था। I was thinking that I am going to get married and settle in my life. और मुझे ऐसा लगा कि मेरा विवाह हो जाएगा और मेरा तो जीवन सेटल हो जाएगा। But by that time I met my husband, brother Philip, in the place where I worked. और जहाँ पर मैं काम करती थी वहाँ पर ही भाई फिलिप मुझे मिल गए। I was able to see a difference in him which I was not able to see unlike in other Christian people where I was brought up. और उनके जीवन में मैंने कुछ तो अलग देखा और उसी चीज ने मुझे उनकी ओर आकर्षित किया जो मैंने दूसरे क्रिस्तियों के जीवन में नहीं देखा। He started loving me a lot. वह मेरे से प्रेम करने लगा। He started proposing me. और उन्होंने मेरे साथ शादी करने का वादा किया। I was in a dilemma to take what a decision in my life. और उस समय मुझे पता नहीं कि मैं किस प्रकार का निर्णय ले लूं। Whether I should choose a person whom my parents have chosen for me or the person who is proposing me. क्या मेरे माता पिता ने जो मेरे शादी तैयार कर ली है या व्यक्ति जो मुझसे कह रहा है क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? So in my mind I was just committed saying I didn't know that which God I am addressing. I was telling just I am going to resign my job and quit and I am going to get rid of this brother Philip. और मैं इस प्रकार मेरे परमेश्वर से बात करने लगी और प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मुझे पता नहीं मैं किस व्यक्ति को चुनूं, पर ये जो फिलिप है मुझे यह मेरे जीवन में नहीं चाहिए। I wanted to get rid of him. मैं उसे किस प्रकार भी उसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। But what happened? He followed me. पर वो पीछा करने लगा। Then again we were able to get united in life. और फिर हम दोनों की विवाह हो गया।
because I wanted to have a sign from the Lord. क्योंकि मैं चाहती थी कि परमेश्वर मुझे कुछ तो चिन्ह बता दो। If you are choosing this person as my life partner, then if I give my resignation, this manager should accept it. क्योंकि मैंने परमेश्वर के सामने इस प्रकार कहा था, अगर मैंने मेरा रेजिग्नेशन दे दिया तो हमारे मैनेजर ने इसे स्वीकारना है। This manager, before he could accept this resignation, पर यह मैनेजर ने मेरा जो रेजिग्नेशन लेटर मैंने दिया था उसने वो स्वीकारा नहीं। it happened that we had to get married to each other. और ऐसा हुआ कि मेरा और भाई फिलिप का विवाह हो गया। Because I have got married to a Christian guy, my whole family started hating me and they stopped having a relationship with me. क्योंकि मैंने एक क्रिस्ती व्यक्ति के साथ शादी की, इसीलिए मेरे माता पिता ने मेरे साथ सारे संबंध तोड़ दिए। It was very reasonable as well. और ये तो होना ही था। My father and mother, they had a great ambition to get me married into their chosen guy. हाँ, मेरे माता पिता की एक ही इच्छा थी कि उन्होंने जिस व्यक्ति को मेरे जीवन साथी कहकर चुन लिया था, मैंने उस व्यक्ति के साथ ही शादी करनी थी। I hurted them a lot. और मैंने उनका दिल को दुखाया। I was feeling so helpless. और मुझे बहुत बेसहारा महसूस हुआ। I was not able to convince my parents. मैं अपने माता पिता को समझा नहीं पा रही थी। And other way, I was not able to go with this marriage life. और इस विवाह के जीवन को भी मैं आगे बढ़ा नहीं पा रही थी। But yet the thing happened because of this was the God's will. We proceeded into marriage. और यह परमेश्वर की इच्छा थी, उसके इच्छा के कारण ही हमारा ब्याह हो गया। The other side, my husband's parents, they were making ready for all the marriage arrangements. They chose a bride for him, and with all the marriage arrangements was almost done for him as well. और जब मेरे पति का जो साइड हम देखते हैं, उसके माता पिता ने भी उनके लिए एक लड़की चुनी थी और उनका भी विवाह दूसरे किसी लड़की के साथ वो कराने वाले थे। Just because my husband told their parents that he loves me, क्योंकि मेरे जो पति थे उन्होंने उसके माता पिता को बता दिया कि अरे मैं किसी और लड़की से प्रेम करता हूँ तो मैं उसी के साथ शादी करना चाहता हूँ। they accepted it. उन्होंने वो स्वीकार लिया। Of course, with not full heart. पर वो अपने पूरे हृदय से उन्होंने मुझे स्वीकारा नहीं। At the same time, they didn't stop him. और उन्होंने उसे ऐसे भी नहीं कहा तू मत कर। 1994, June 24th, we got married. 24 जून 1994 में हमारा ब्याह हुआ। Because I have to get married to a Christian boy, I had to take baptism. और मुझे एक क्रिस्ती मनुष्य के साथ विवाह करना था, इसीलिए मैंने बपतिस्मा ले लिया। Just because I have to get married, I took a baptism without accepting Jesus in my heart. मैंने यीशु का तो स्वीकार नहीं किया था मेरे दिल में, पर मैंने बपतिस्मा तो ले लिया क्योंकि मैं एक क्रिस्ती व्यक्ति से विवाह कर रही हूँ। Our marriage was over. हमारी जो विवाह था वो पूरा हो गया। Then I was stepped into my mother-in-law's house. और मैं हमारे सास के घर में प्रवेश किया। But there I was able to see totally different atmosphere. और उनका जो घर था वो बहुत अलग प्रकार का था। There was a religion problem. और वहाँ पर अभी धर्म का समस्या आ गई। Here I was born and brought up in a traditional Brahmin community. और मुझे एक ट्रेडिशनल ब्राह्मण घराने में पैदा हुई थी। Whereas this was totally a Christian family. और इस तरफ तो एक पूरा क्रिस्ती परिवार था। On the other side, there was a language problem for me. और दूसरी तरफ भाषा भी हमारे अलग अलग थे। I was Telugu and here he was Tamil. मैं तो एक तेलुगु परिवार से हैं और वो तमिल परिवार से। And at the most I had a very difficult problem with the food. I was a pure vegetarian and he was totally a non-vegetarian. और सबसे बड़ी समस्या खाने का, मैं तो एक जो मांस नहीं खाती और वो उनका परिवार तो मच्छी मटन खाते। So this in every way I was not able to fit into the marriage life which I have chosen. और किसी तरफ से भी मेरे विवाह के जीवन में वहाँ पर मैं स्थिर नहीं हो पा रही थी। Just because we got married, I lost the job. और ये हमने विवाह कर लिया, विवाह के कारण ही मैंने अपनी नौकरी भी खो दी। Because there was a rule in that place where we were working that husband and wife should not work in the same place. क्योंकि वहाँ उस नौकरी का यह नियम था
कि पति और पत्नी एक स्थान पर नौकरी नहीं कर सकते। Immediately after 2 months, my husband also lost the job there. और 2 महीने के बाद मेरे पति ने भी अपनी नौकरी खो दी। Now one side I got into the marriage and I didn't bring anything into my in-laws house. और एक तरफ मेरा विवाह हो चुका था और मेरे सास के घर में मैं कुछ भी नहीं ले आई थी। On the other side, my job and my husband's job, both we have lost the jobs. और मैंने और मेरे पति ने दोनों ने अपनी नौकरियां भी खो दी। No income at all. और हमारे पास कुछ भी पैसे आते नहीं। You could imagine how would be my welcome in my in-laws place. आप थोड़ा कल्पना कीजिए कि मेरे सास ससुर के घर में मेरी स्थिति किस प्रकार की होगी। But yet they didn't hate me. पर मैंने देखा कि उन्होंने मेरे से कभी नफरत नहीं At किया। the same time, they were not able to love me as well. और उसी समय वो मुझसे भी प्रेम नहीं कर पाते। They have accepted me. उन्होंने मेरा स्वीकार तो कर दिया। Neither love, not hatredness. वो मेरे से ना प्रेम करते और ना उनको नफरत है। I was not also able to mingle with them. और मैं भी उनके साथ मिलजुल नहीं कर पाती। 2 years it gone like that. और 2 साल ऐसे ही बीत गए। After that we thought of it is not possible because we were living in a village. My mother-in-law place it was in a village. क्योंकि हम एक गांव में रहते थे और हमें लगा कि अब यहाँ हमारा रहना ठीक नहीं है। Without income we cannot continue in the same place. और कोई भी इनकम नहीं, कोई नौकरी नहीं, कुछ पैसा नहीं, तो हम किस प्रकार यहाँ पर रह सकते हैं। So by taking a loan in the bank we started our eye clinic by name Lens and Frames in Adayar, Chennai. और हमने एक छोटा सा लोन लिया और हमने एक लेंस एंड फ्रेम्स नाम का एक क्लिनिक हमने अडियार उस स्थान में शुरू किया, चेन्नई में। So we shifted our house from village to Chennai. और हमने उस गांव में से घर छोड़कर हम चेन्नई आ गए। God blessed us with 2 children. और परमेश्वर ने हमें 2 संतानों से आशीषित किया। So financially we were prospering. और पैसों से हम तो बड़े आशीषित थे। So with the 2 little children we led a very happy life. और हमारे 2 संतान के साथ हम बड़ा आनंद का जीवन जी रहे थे। So I was thinking now every problem is over. Now everything seems to be all right. और मुझे ऐसा लगा अरे हमारी समस्या तो सब खत्म हो गई, अब तो हम अच्छी तरह जी सकते हैं। But after our 5 years of our marriage life, हमारे विवाह के 5 साल के बाद in the year 1999, और 1999 साल, my husband started developing a physical sickness and a mental sickness. और मेरे पति को शारीरिक तरीके से और मानसिक तरीके से किसी प्रकार की बीमारी शुरू हो गई। We were not able to name it or we were not able to diagnose it. What is the problem? और हम उस बीमारी को ना नाम दे पाते, ना डॉक्टर कुछ बता सकते कि इस व्यक्ति को किस प्रकार की बीमारी है। He was a very efficient and busy and sincere and hardworking businessman. और मेरा जो पति है वो बहुत अच्छी तरह से कड़ी मेहनत से अपना व्यवसाय करता था। So he used to work for more than 10 hours. वह 10 घंटे से ज्यादा काम करता था। But it happened like that he was not able to sit in that clinic for a long time. और अब ऐसा हुआ कि वो अपना जो आँखी का दवाखाना है वहाँ पर वो बैठ ही नहीं पाता। And slowly he totally lost the interest in going to the clinic. और देखते देखते उसे क्लिनिक में जाने का जो पूरा इंटरेस्ट ही चला गया। We will hear the phone call saying that so many patients are waiting. और हमें फोन आते क्लिनिक से कि कई सारे पेशेंट्स यहाँ पर बैठे हैं। Even though by hearing it he will not have an interest to go to the clinic and attend the patients. और यह सुनने के बाद भी वह क्लिनिक नहीं जाना चाहते थे, वो ऐसे ही बैठे घर में रहते थे। I used to compel him and I used to take him to the clinic. मैं ही उन्हें खींच कर ले जाती थी उस क्लिनिक पर। But he was not able to be in that clinic for not more than half an hour. और पर वो उस क्लिनिक में आधे घंटे से ज्यादा बैठ ही नहीं पाते। His eating habits is slowly it reduced. उन्होंने अपना खाना खाना भी कम करना शुरू किया। He was not able to sleep. वो सो नहीं पाते। Suddenly in the hands and the foot it started burning. और उनके हाथों में और
पैरों में एक प्रकार की जलन शुरुआत हुई। He was not able to speak neither to me nor to the children openly. वह मुझसे या मेरे बच्चों के साथ भी बात नहीं कर पाता। He used to hide himself inside a closed room. वो हमेशा अपने आप को रूम एक खोली में बंद करके रखता था। He used to think of something on his own. वह हमेशा अपने बारे में कुछ कुछ सोचता रहता था Suddenly he used to scream. और वो जोर से चिल्लाता था। Suddenly we saw that his heart's palpitation, it started developing more and more. और उसका जो हृदय है, उसका जो दिल है, वो जोर से बढ़ता जाता था। He started developing very much anxiety. और वो बहुत सारा चिंतित होते गया He got into the depression. और वो डिप्रेशन के अंदर खोता रहा। Not only that, fear started gripping his heart. वही नहीं, वो पूरे डर से भर गया था। Suddenly he used to tell me, I'm just leaving, I'm going to die. और वो बीच में उठ जाते और कहते, अरे मैं तो मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। If somebody says that I'm having a stomach pain, he will say, yes, I'm also feeling this stomach pain. अगर किसी ने उनसे कहा, अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो वो कहते, अरे मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है। If he hears something, immediately he says, my heart is aching, take me to the cardiologist. अगर किसी प्रकार का आवाज सुनाई देता तो वो ऐसे कहता, अरे जो मेरा दिल है वो धड़क रहा है, मुझे प्लीज कोई कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास ले जाइए। We didn't know what he is doing. हमें पता नहीं कि वो क्या कर रहा है, What is happening inside him. उसके शरीर में क्या हो रहा है। In 1 year, he lost 25 kilos of weight. और 1 साल के अंदर उन्होंने 25 किलो वजन घटाया। We used to take him to the doctors for further medications. और हम उसे हमेशा डॉक्टर के पास ले जाते कि उसे और नए मेडिसिन दे दे। They used to rule out by taking so much of x-rays and scans and these and that. और वो हमेशा एक्सरे लेते, स्कैनिंग के लिए जाओ, इस प्रकार कहते। So many medications, so many doctors up to the psychiatrist. बहुत सारी दवाइयाँ दी, बहुत सारे वैद्य के पास हम गए, साइकेट्रिस्ट के पास भी उन्हें ले We गए। totally lost the peace in our lives. और हमने पूरी शांति हमारे जीवन से खो दी। Totally we were not able to do our parental duties towards our children. हम अपने जो माँ बाप के जो काम है वो भी हम नहीं कर पाते। Always he used to hold my hands with fear. वो हमेशा मेरा हाथ पकड़ता और बहुत डर से भरा रहता। 24 hours he expected me to be with him and by his side. और वो चाहते कि 24 घंटे में उसके बाजू में ही रहूं। I was so shocked and I was not able to understand what is happening and what to do. मुझे एकदम एक शॉक जैसा महसूस हुआ, मुझे पता नहीं मैं इसे क्या हुआ है, क्या करूं। Even after my marriage life, और मेरे विवाह के जीवन, I didn't become a full Christian. मैंने अपना धर्म नहीं बदला। Just for wedding sake, I was baptized. सिर्फ शादी करने के लिए मैंने बपतिस्मा लिया। At the same time, I used to continue to do my idol worship inside our room itself. और मैं अपना मूर्ति पूजा मेरे घर के एक कमरे में करती रहती। So all these things, when I saw my husband suffering, जब मैं ये सब कुछ करती थी और मैंने देखा कि मेरा पति इतना तड़प रहा है, so I thought whatever I am doing, it was not sufficient for him. तो मुझे लगा कि मैं जो कुछ कर रही हूँ वह उससे वो प्रसन्न नहीं है। I was seeking more idols. इसलिए मैं सोचने लगी कि मैं और मूर्ति पूजा करूँ। I was trying to do sacrificing myself without eating, without sleeping, hurting myself. I thought of doing something so-called. I was thinking that this idol, this god, this goddesses will deliver my husband. और मैं बहुत सारे अर्पण करती थी, मैं अपने आप का भी अर्पण करती थी, मैं बहुत उपवास रखती थी और मैं किस प्रकार मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं कुछ ना कुछ हमेशा करती थी क्योंकि मेरा जो पति है वो ठीक हो जाए। In different ways, I tried to seek the help of the idols, god and goddesses. और अलग अलग तरीके से मैंने मेरे जो परमेश्वर है उनकी मदद लेना चाहती थी। I was not able to share my agony to anyone. जो मेरा दुख दर्द है, मैं जिस पीड़ा से गुजर रही हूँ, मैं किसी से भी यह बांट नहीं पाती। One side medical doesn't help me. और एक साइड जो डॉक्टर है, जो मेडिकल है, वो मेरी मदद नहीं कर पाते। One side I'm giving all the sacrifices, but I'm not seeing any change or the remedy or solution
in my husband's life. और दूसरी तरफ मैं इतना सारा अर्पण कर रही हूँ, इतना सारा काम भगवान के लिए चढ़ा रही हूँ, पर कुछ भी मेरे पति के जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है। My side, they stopped totally having connection with me. और मेरे जो घर के परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने मेरे साथ सारे नाते तोड़ दिए। In my in-law side, when they saw total change in my husband's life, और जो मेरे सास ससुर है, उन्होंने देखा कि मेरे पति को कुछ तो हो गया था। instead of asking, instead of inquiring, instead of encouraging, और हमें सपोर्ट करना या हमें उत्साह करना या हमें किसी प्रकार की मदद करने के सिवा they started putting all the blame on me, saying, before you could come in his life, he was all right. After you came in his life, everything totally he gone mad. और उन्होंने मुझे इस प्रकार के ताने मारे। मेरा बच्चा इतना अच्छा था, मेरे बेटे के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तुमने मेरे जीवन में प्रवेश किया, मेरे बेटे का जीवन सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ खराब हो गया। So they also started disconnecting with us. और उन्होंने भी हमारे साथ सब संबंध तोड़ दिए। Because whenever they came to our house, क्योंकि जब भी वो मेरे घर पर आते, my husband, he was not able to speak to them. मेरा पति उनसे बात भी नहीं कर पाता। So they were not able to understand that is due to his own sickness. क्योंकि वो इस प्रकार समझ नहीं पाते कि उन्हें किस प्रकार की कुछ तो बीमारी हुई है। But instead they, even for that, they started blaming me. और उसके कारण भी वो मुझे ही ताना मारते थे। But now I could realize that God has hardened their heart of my in-laws and all the siblings of my husband. मैंने देखा कि परमेश्वर ने उन सभी का, मेरे सास ससुर और मेरे पति के जो भाई बहन जो भी थे, उनका जो हृदय है बहुत कठोर हो चुका था। As we read it in Exodus chapter 14, God himself is hardening the heart of the Pharaoh. जैसे हमने निर्गम 14वां अध्याय में पढ़ा है कि परमेश्वर ने ही फारो का हृदय को कठोर बनाया था। Why? Because God wants to exhibit his glory. क्यों ऐसे परमेश्वर ने किया? क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता था। Hallelujah. हालेलुया। That was the time I didn't understand that. और यह समय में ये सब कुछ नहीं समझ पा रही थी। Because they were not able to come and be with them, in no way they are encouraging us. और वो हमारे साथ नहीं रहते और हमें वो प्रोत्साहन भी नहीं करते। I also developed hatredness towards them. मैं भी उनसे नफरत करने लगी। Totally there was no one to care us. और हमारे बारे में सोचने के लिए या विचार करने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी न था। No friends, no relatives, nobody. कोई मित्र नहीं थे, कोई हमारे नाते के कोई नहीं थे और मेरे लिए कोई भी नहीं था। There was no one to share. मैं किसी से कुछ भी नहीं बांट पाती। I was not able to share even to my husband what you are doing, what's going on in your life. मैं मेरे पति के साथ भी यह बांट नहीं पाती कि ये आपके जीवन में ये सब क्या हो रहा है। I was not able to share it with my children because they are very little. और मैं अपने बच्चों के साथ भी यह बांट नहीं पाती क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे थे। Closing the door, I was crying aloud. और मैं क्या करती थी, अपने दरवाजे को बंद करती थी और जोर जोर से रोती थी। What is my fate, Lord? मेरा विश्वास कहाँ पर है प्रभु? What is going to happen in my life? मेरे जीवन का क्या होने वाला है? Why I am living in this darkness? मैं इस प्रकार के अंधेरे में क्यों जी रही Who हूँ? is there to rescue me? कौन है जो मुझे इस स्थिति से बाहर निकालेगा? Is there a future for us? क्या मेरे लिए किस प्रकार का भविष्य है? Should I go away from my husband's life? क्या मेरे पति को छोड़कर मैं निकल जाऊं? How can I do that? मैं कैसे यह कर सकती हूँ? How can I finish my life even? मैं मेरे जीवन का अंत भी कैसे कर सकती हूँ? 2 little children are there. मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। I'm totally helpless. और मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। Is there any God? क्या कोई परमेश्वर है? Is there any power? क्या कोई सामर्थ है? Medical is not helping. जो मेडिकल है वो तो मदद नहीं कर पा रही है। Doctors are not able to diagnose. डॉक्टर कुछ बता नहीं रहे कि इनको क्या हुआ है। Simply they are giving the sleeping doses and even that with that also he was not able to sleep. वो सिर्फ नींद की गोलियां लिख के देते और नींद की गोलियां खाने के बाद भी उन्हें नींद नहीं आती। I am not able to cook. मैं खाना भी नहीं बना पाती। I am not able to. As a mother, what I should do for the children, I was totally not able to do
anything. और एक माँ कहकर मैंने अपने बच्चों के लिए जो कुछ करना है मैं कुछ भी नहीं कर पाती। Totally, I was so desperate. और मैं इस प्रकार निराश और हताश हो चुकी थी। I was not able to do anything other than crying, crying, crying. मैं कुछ भी कर नहीं पाती, हमेशा रोते रहती। During that time, और उस समय a person from my own place और जो मैं जहाँ पर रहती थी उस स्थान से एक व्यक्ति आया who was working in Chennai, जो चेन्नई में नौकरी करता था who was also known to Brother Philip. और जो भाई फिलिप को भी जानते थे। He called me and tell Brother Philip, I am coming for eye testing. Only you should do my testing. और उन्होंने फोन करके मुझसे मेरे पति से कहा, भाई फिलिप मैं आ रहा हूँ क्लिनिक को, आपने ही मेरे इस आंखों का चेकअप करना है। Because he insisted. क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती की। So I took my husband to the clinic to make his eyes tested done. और मैंने इसीलिए मेरे पति को लेकर वो उस भाई की आंखों को टेस्ट करने ले गए। By seeing as soon as that friend saw my husband, और जब भी उनके मित्रों ने मेरे पति की हालत देखी, he was so shocked. वो शॉक्ड हो चुके थे। He was gone so thin. वो इतने पतले हो चुके थे। He was not of himself. वो अपने आप ही नहीं थे। He was not of his senses at all. और उनकी दिमाग कुछ भी नहीं चल रहा था। After the testing over, he told, "Will you allow me to pray?" उनकी टेस्टिंग समाप्त होने के बाद उन्होंने कहा, क्या भाई मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? Then my husband told, "Yes, why don't you please do the prayer?" हाँ, मेरे पति ने कहा, हाँ आप जरूर प्रार्थना कीजिए। The moment he prayed, he fell down. और जब भी उन्होंने प्रार्थना की वो नीचे गिर पड़े। That was the time he was telling Brother Philip, "Only Jesus can heal you." हाँ, उसी समय उस भाई ने कहा कि भाई फिलिप सिर्फ प्रभु यीशु ही आपको चंगाई दे सकते हैं। You do one thing. आपने एक काम करना है। In 1 kilometer away, there is a prayer tower Jesus calls, and there is a great man of God, D.J.S. Dinakaran. और यहाँ से 1 किलोमीटर आप जाइए, वहाँ पर प्रेयर टावर है और वहाँ आपको भाई दिनकरन मिलेंगे। Just have a one word of prayer from him. आप उनसे एक ही बार प्रार्थना करा लीजिए। You will feel all right and you will be completely delivered. आपको सही महसूस होगा और आप पूरी तरह मुक्त हो जाओगे। It looked very funny for me. हाँ, मुझे ये बहुत एक जोक जैसे लगा। In sarcastically I told, "Why don't we? We tried medicine, we tried all the idol worshipping. Why can't we try this?" और मैंने उनसे मजाक से कहा, अरे यार हमने तो इतने डॉक्टर देखे, इतने वैद्य देखे, इतने सारे दवाई खाए और क्या नहीं किया, क्यों ना हम यह भी देखते हैं, ट्राई करते हैं। So we approached to Jesus Calls. और हम जीसस कॉल्स में गए। Unfortunately, Uncle D.J.S. Dinakaran was not that time. He was out of station for the ministry. और देखा उस समय कि भाई डीजेस वहां पर नहीं थे, वो कहीं बाहर गए थे प्रचार के लिए। So the prayer warriors in that prayer tower prayed. और जो प्रेयर टावर के जो प्रेयर वॉरियर थे उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की। Same thing happened. They prayed and he fell down. So he started vomiting. और उसी समय वह भी नीचे गिर गए प्रार्थना के बाद और उन्होंने उल्टियां कर दी। Something we felt different, the peace for which we have been longing for. और उसी समय हमारे अंदर एक प्रकार की शांति भर गई और उस शांति के लिए की ही राह हम देख रहे थे। So we came back home. और हम घर आए। Again next day morning we go to the prayer tower. और दूसरे दिन हम फिर प्रेयर टावर जाते। The prayer warrior, another prayer warrior, they used to pray and same thing will happen. और प्रेयर टावर में प्रेयर वॉरियर हमारे लिए प्रार्थना करते और वो फिर नीचे गिर जाते। So we come back again. और हम फिर घर आते। So we used to wait when the day will come. We used to wait when the night will come. और हम इस प्रकार राह देखते कब सुबह हो जाएगी, कब रात हो जाएगी। In the meantime, he used to scream a lot. और उसके बीच में वो जोर जोर से चिल्लाते। One side suffering. और एक तरफ हमारी हालत इतनी खराब हुई थी। One side pain he was going through. और एक तरफ वो इतने पीड़ित और इतने दर्द से गुजर रहे थे। One side he was developing a fear of death in him. और एक तरफ उनके अंदर मृत्यु का भय भर गया था। Other side anxiety. और दूसरी तरफ चिंता। Other side the whole rejections from all the sides. और चारों तरफ से सभी परिवार के सदस्य ने उन्हें ठुकरा दिया था। Totally helpless situation. और उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। But the people where we were living in the flats, they used to tell, "You have become a very great nuisance. We were not able to live in peace. Please shift the house and go." और हम जिस फ्लैट में रहते थे उन्होंने लोगों ने बताया, अरे आप तो हमारे सबके लिए बहुत परेशानियां खड़ा कर रहे हैं,
आप इस घर को छोड़कर यहाँ से निकल जाओ। So in a year he shifted 3 places, और 1 साल के अंदर हमने 3 घर बदले, but nothing changed. पर कुछ बदलाव नहीं आया। Morning we used to go to the tower and come back again. सुबह हम प्रेयर टावर जाते और फिर घर आते। 3 full years I didn't sleep at all. और 3 साल में 1 मिनट भी नहीं सो पाती। In the fear, when he will scream, when my children will cry, when the people around us, they will come and they will scold us. और उस प्रकार के भय में जीती, अरे मैं इसको कुछ हो जाएगा, ये चिल्लाता है, मैं घर कैसे संभालूं, मैं अपने बच्चों को कैसे संभालूं, इस परिस्थिति को मैं किस प्रकार संभालूं। So this went on for all the 3 years in our lives. और इस प्रकार की स्थिति 3 साल तक हम गुजर रहे थे। So one day it happened, a friend of us who were with us seeing everything that happened in our lives. और एक दिन हमारा एक मित्र जो जान चुका था कि हमारे जीवन की स्थिति इस प्रकार की है, So he told, you need to come out of your house. और उन्होंने कहा कि तुमने अपने इस घर से बाहर आना है, I will take you to one place. मैं तुमको एक जगह ले जाता हूँ। So he took us in his own car, both of us. और उन्होंने हम दोनों को अपने ही कार में ले गए। He took us in a very big meeting और उन्होंने हमें एक बड़ी मीटिंग में ले गए, in Veperi in Chennai. वेपेरी नामक जगह चेन्नई में। There, by name evangelist John Joseph, he was preaching, he was conducting the meeting. और वहाँ पर एक परमेश्वर के सेवक जॉन जोसेफ कहकर वहाँ पर प्रचार कर रहे थे। There was a huge crowd there, और वहाँ पर बहुत भीड़ थी, full of lights. और वहाँ पर सब जगह प्रकाश था। So it was going live telecast. और इसी प्रकार वह लाइव टेलीकास्ट चल रहा So the था। preacher was preaching something. और जो प्रचारक था वो कुछ बात कर रहा था। Without interest, I was also sitting. और मुझे उसमें कुछ दिलचस्पी नहीं थी, मैं ऐसी वहाँ पर बैठी थी। I was hearing, but I was not able to understand what he is preaching. मैं वहाँ पर सुन रही थी, पर मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये व्यक्ति क्या प्रचार कर रहा है। Physically we were there. और शारीरिक तरीके से हम वहाँ पर मौजूद थे। Mentally we were looking here and around there. और हमारा जो मन है वो पूरा गांव घूम रहा था। The end of the meeting, मीटिंग के अंत में he started praying. वह प्रार्थना करने लगे। We started the light flashing on us. और हम देखने लगे कि हमारे चेहरे पर कुछ तो प्रकाश आकर चमक रहा था। So I thought it should be a flash of the camera. और तो मुझे इस प्रकार महसूस हुआ शायद जो कैमरा का जो फ्लैश आता है वो हमारे चेहरे पर गिर रहा है। Same thing, my husband too felt that. मेरे पति को भी इसी प्रकार का अनुभव हुआ। Again, second time the camera started flashing. और दूसरा बार फिर उस प्रकार का प्रकाश हमारे पे आने लगा। We thought that is a camera flash. और हमें ऐसा लगा शायद जो कैमरा का जो फ्लैश होता वो हमारे पर पड़ रहा है। But again the third time we could see the light flashing on us. और तीसरे बार हमने फिर देखा कि किसी प्रकार का प्रकाश हमारे ऊपर चमक रहा है। That was the time the brother John Joseph from the pulpit, और उसी समय भाई जॉन जोसेफ ने उस प्रचारक स्थान से कहा, he started telling, वो इस प्रकार कहने लगे, here there are a few chosen people in this crowd. यहाँ पर इस भीड़ में परमेश्वर के चुने लोग हैं। Today God is going to totally transform their lives from darkness into light. आज की रात परमेश्वर इन कुछ ही लोगों को मुक्त करने वाला, वो उन्हें अंधेरे में से प्रकाश की ओर ले आ रहा है। You are going to have an encounter tonight with Jesus. आज आप यीशु को सम्मुख देखोगे। Hallelujah. हालेलुया। So I was thinking this word is for somebody. और मैं इस प्रकार विचार कर रही थी कि यह वचन किसी और के लिए है। Because nothing entered into my ear. All those hours they were preaching and praying, nothing entered into my ear. घंटे घंटे वो जो भी प्रचार कर रहे थे या जो भी प्रार्थना कर रहे थे वो मेरे सिर में बिल्कुल भी नहीं चला गया। But this only, I was carrying that word in my heart. पर यह जो आखिर का जो वचन आया वही वचन मेरे अंदर गूंज रहा था। So we came home. जब हम घर लौटे, So at the same time only, totally something happened which transformed my life. और उसी रात कुछ तो हुआ जिसके कारण मेरे जीवन में सब कुछ बदल गया। Hallelujah. हालेलुया। Psalms 4:3 says, भजन संहिता 4 अध्याय 3 वचन में लिखा है, God is setting apart himself the godly. परमेश्वर ने अपने लिए
धार्मिक लोगों को अलग करके रखा है। Jeremiah 31:3 says, यिर्मयाह की पुस्तक 31वां अध्याय और 3रा वचन में लिखा है, He is loving with His everlasting love. वो हमें सार्वकालिक प्रेम से प्रेम करता है। His faithfulness draws us closer to Him. उसकी जो फेथफुलनेस है वो हमें उसके पास और करीब खींच ले जाती है। Something same happened in my life. वैसे ही मेरे जीवन में कुछ तो हुआ। It was on November 2nd. और यह नवंबर महीना दूसरा दिन चल रहा था। It was in the year 2001. और ये 2001 वह साल था। It was 2:45 और 3 बजने में 15 मिनट बाकी थे। 2:45 a.m. 2:45 बज चुके थे। It was that time. सुबह के 2:45 बज चुके My थे। husband was lying down on the bed. मेरे पति उस बेड पर सो रहे थे I was sitting by his bedside. और मैं उनके बेड के करीब बैठी थी। All those 3 years I was like that only. और 3 साल तक मेरी हालत इस प्रकार की थी। My children were sleeping at the next room with a servant girl. मेरे जो बच्चे थे वो अब मेरे नौकर के साथ सो रहे थे। I saw that bright light entering into my room. और मैंने देखा कि एक बड़ा प्रकाश रूम के अंदर प्रवेश किया। I was so shocked. और मुझे बड़ा शॉक लगा। It is now 2:45. और अब तो 2:45 बज चुके हैं। How come this bright light now it could be? और यह 2:45 बजे इतना प्रकाश कहाँ से आ रहा है? That day my husband was sleeping with a deep sleep. और मेरे पति वो जो आराम से अच्छी नींद में सो रहे थे। I was seeing this light. और मैं इस प्रकाश को देख रही थी। Immediately I got up from that place. और मैंने उस जगह से उठ गई। Whether my children did they came and they switch on the light. मुझे ऐसे लगा क्या मेरे बच्चे बाहर आए और उन्होंने जो लाइट है उसे ऑन कर दी। But as I went and checked, the door was locked and my children were sleeping on the other room. और मैंने बाहर जाके देखा तो वहाँ पर तो मेरे बच्चे अपने रूम में सो रहे थे और वहाँ पर जो लाइट सब बंद थी। This bright light was becoming more brighter and brighter. और यह जो प्रकाश था वो और सामर्थ्य से चमकने लगा। Suddenly I saw a person appearing from this bright light. और उस लाइट में मैंने एक व्यक्ति को देखा। He was looking like a person. और वह एक साधारण व्यक्ति के समान दिख रहा था। As though if you are affected with a heavy accident. और ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसका एक्सीडेंट कराया। Full of blood bleeding. और पूरा खून लहू बह रहा था। I saw a crown of thorns on his head. मैंने देखा कि उसके सर के ऊपर कांटों का मुकुट था। I was stretching both the hands like this with the nail pierced hands. और उसने दोनों हाथों में खीले ठोके हुए थे। And both in his feet the nail was pierced. और उसके दोनों पैरों में खीला ठोका गया था। The thorn from the crown it pierced through his eyes. और जो कांटे का ताज जो उनके सर पे लगाया था वो कांटे उसके आंखें में घुस चुकी थी। From head to foot that blood was oozing. सर से लेकर पांव तक लहू बह रहा था। I am not seeing this in a vision or dream. और यह मैंने दृष्टांत में या सपने में नहीं देखा। I am seeing face to face. मैं सम्मुख देख रही हूँ। With this physical naked eyes I am seeing this person before me. मेरी आत्मिक दृष्टि से नहीं, इसी दृष्टि से मैं उस व्यक्ति को देख रही थी। I was so astonished to see that in such a condition. और मैंने उस व्यक्ति को उस प्रकार की स्थिति में देखा। But I didn't develop any fear. पर मेरे अंदर किस प्रकार का भय पैदा नहीं हुआ। I was just staring at him. और मैं उस व्यक्ति की ओर देख रही थी। He started speaking. वो मेरे साथ बातचीत करने लगा। He started speaking with love. वह प्रेम से मेरे साथ बात करने लगा। After this full 7 years of my marriage life. और 7 साल के मेरे विवाह के जीवन में He was calling my name. My old name was Gayatri. मेरा जो पुराना नाम था वह गायत्री था। Meaning goddesses of Vedas. वेदास की परमेश्वर। He called me with a loving voice by that name Gayatri, my child. और उसने बड़े प्रेम से मुझे उस नाम से पुकारा, गायत्री मेरी बेटी। I was so attracted to that name. और मुझे उस नाम से बहुत आकर्षित हुआ।
After my baptism, I was called by name Catherine. और मेरा बपतिस्मा के बाद मेरा नाम कतरीन रख दिया गया। After marriage, no one called me by this name और मेरे विवाह के बाद इस नाम से मुझे किसी ने नहीं पुकारा, because my parents' side, everyone forgotten me. They cut the relation. क्योंकि मेरे माता पिता के घराने से सब लोग मुझे भूल चुके थे। उन्होंने मेरे साथ सारे संबंध ही तोड़ दिए थे। But this person before me calling me very affectionately, lovingly, is calling me by name, my child Gayatri. और ये कौन है जो मेरे से इतना प्रेम से मुझे कह रहा है मेरी बेटी गायत्री? I was so shocked. और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। At the same time, I was so much attracted towards this person. और उसी समय इस व्यक्ति के लिए मैं बहुत आकर्षित हो गई। So immediately he started speaking to me. तुरंत वो मेरे से बात करने लगे Don't get panic. कि तुम डरना नहीं, I am Jesus. मैं यीशु हूँ, I am the way, I am the truth, and I am the life. मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। I know what way you are going through. मुझे पता है कि तुम किस स्थिति से गुजर रहे हो। None of you can help you. कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाता। None of you can set your husband free. कोई भी तेरे पति को छुटकारा नहीं दे सकता। None of you give you the liberty. और कोई भी तेरे पति को इस प्रकार का छुटकारा नहीं दे सकता। None can come for your rescue. कोई भी तुझे छुटकारा देने के लिए नहीं आएगा। Only I can do that. सिर्फ मैं ही वह कर सकता हूँ। Because this is the work of the evil. क्योंकि यह जो काम है ये दुष्ट व्यक्ति का काम है। 1 John 3:8. पहला योहान 3 अध्याय और 8वां वचन में, I have came into this world to destroy the work of the devil. मैं आया हूँ शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए। So only I can set your husband free. सिर्फ मैं ही आपके पति को छुटकारा दे सकता हूँ। Immediately I came into my sense. और तुरंत मुझे इस प्रकार की जानिब हो गई। These 3 years, यह 3 साल what not we have not tried. हमने किस प्रकार क्या कुछ नहीं किया। But this person is coming and telling only I can set your husband free. और यह व्यक्ति आके मुझसे कह रहा है कि मैं ही आपके पति को छुटकारा दे सकता हूँ। I was a person who will not believe anybody's word. और मैं उस प्रकार की व्यक्ति हूँ कि मैं किसी के शब्दों पर विश्वास नहीं करती। I was worshipping God and goddesses of 33 million. और मैं उन देवियों की पूजा करती थी जो 33 करोड़ है। So when they were not able to do what this person can do, जब वो ही मेरी मदद नहीं कर पाते तो यह मेरा क्या मदद करेगा? I was thinking within my heart. मैं इस प्रकार मेरे दिल में सोच रही थी। I was questioning within my heart. मैं अपने अंदर ही इस प्रकार के सवाल पूछ रही थी। Then Jesus read my heart. और यीशु ने मेरे हृदय की बातों को पढ़ा। Not only that, वही नहीं, when you are telling you are Jesus, आप ऐसे कह रहे हो कि आप यीशु हो। this same name only my husband, my whole family is worshipping. और यही नाम तो मेरा पति और उसके पूरा परिवार उसी का तो आदर करते हैं। But if you are God, why you allowed your children to suffer like this, and why you left totally helpless in this life? और अगर आप परमेश्वर हो तो आपने हमें इस स्थिति में क्यों छोड़ दिया? इस प्रकार का जीवन से हम क्यों गुजर रहे हैं? In my heart I was questioning. और इसी प्रकार मेरे अंदर बहुत सारे सवाल जागृत हो गए। Who is Jesus? यीशु कौन है? Before you could open your mouth and say, आप अपने मुंह खोलने के पहले He would read the what is in your heart. वो आपके हृदय के अंदर जो भी है वो पढ़ सकता है। Man can see the face. मनुष्य सिर्फ आपके चेहरे को देखता है। Man can judge by seeing the face. जो मनुष्य है वो आपको जज करता है अपना चेहरा देखकर। But God sees our heart and reads the mind. पर परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है और हमारे मन की जो बातें चलती है वो भी जानता है। I was not a person who will believe just like that. और मैं उस प्रकार की स्त्री नहीं हूँ कि मैं किसी चीज पर भी विश्वास करूँ। So he wanted to demonstrate his power. और वह अपना सामर्थ्य मुझे प्रकट करना चाहता था। He went on telling me, और आगे वो मुझसे कहता गया, my dear daughter, मेरी प्रिय बेटी, now see what's going to happen. अब देख क्या होगा। What now see? अब देख, I am opening your spiritual eyes. मैं तेरी आत्मिक
दृष्टि को खोल रहा हूँ। You yourself see. अब देख क्या होगा। He opened my eyes. उन्होंने मेरी आत्मिक दृष्टि को खोली। There I saw my husband lying with all the side evil forces and full of darkness oppressing and suppressing him. और मैंने देखा कि मेरा पति जब खाट पे लेटा हुआ है पर उसके चारों तरफ अंधकार और सारे दुष्ट आत्माएं से लगी हुई है। This is what is happening in your husband's life. और यही तेरे पति की जीवन की स्थिति है। Because somebody has done witchcraft against him because of the jealousy. क्योंकि किसी ने उनके जीवन पर जादू टोना करके रखा है, क्योंकि वो उनसे ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं। To spoil our life. कि हमारा जीवन, पारिवारिक जीवन नष्ट हो। To separate us. कि हम दोनों को वो अलग करे। To bring our life onto the road. कि हम दोनों को वो रास्ते में ले आए। So this was the reason for my husband's suffering. और यही कारण है कि आपके पति इतनी तकलीफ से गुजर रहे हैं। That was the reason. No medication or no MRI scan can diagnose what is the problem that my husband was going through. इसी कारण कोई भी मेडिसिन है या कोई भी जो डायग्नोसिस किया है वो कुछ बताती ही नहीं थी मेरी पति की समस्या क्या है। Other side I was behind the idols seeking the help, but that couldn't help. पर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ मैं सभी देव देवताओं का मूर्ति पूजा करती थी पर वह कोई भी मेरी मदद नहीं कर पाया। Now Jesus was going on telling me. और अब यीशु मुझे बता रहे थे। Now see what's happening. अब देख क्या हो रहा है। He immediately with his stretched out hands. उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए from his right hand. और उनके जो दाहिना हाथ है He made a drop of blood. और उन्होंने एक रक्त का बूंद, only a drop of blood, एक बूंद रक्त का, he made that drop of blood to fall on my husband. और एक बूंद उस लहू का मेरे पति के ऊपर उन्होंने डाल दिया। Something miracle happened. और वहां पर कुछ तो चमत्कार हो गया। As soon as the drop of blood fell on my husband, जैसे उस लहू का एक बूंद मेरे पति के ऊपर गिर पड़ा, immediately that evil spirit left out my husband by screaming. और सारे दुष्ट आत्माएं चिल्ला चिल्लाकर मेरे पति के शरीर को छोड़ के चले गए। The same screaming. और जैसे वो जोर से चिल्ला रहे थे, all these 3 years which made us to feel very helpless. और यह 3 साल गुजर चुके थे, वो इसी प्रकार चिल्लाते थे और हमें कोई भी सहायता नहीं करता था। The one drop of blood of Jesus, when it fell on him, it left. प्रभु यीशु मसीह का एक बूंद का लहू जब उनके शरीर पर आ गया, गिरा, तब ये सारी दुष्ट आत्माएं उन्हें छोड़ के चले गई। Immediately light started surrounding him. और उसके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। I was so marveled. ओ, ये देखकर मैं बड़ी आश्चर्यचकित हुई। I was so stunned. ओ, मैं बहुत आश्चर्य में पड़ गई। I was again too much attracted towards this person. पहले उस व्यक्ति को देखकर मैं बहुत आकर्षित हुई। I started developing reverence before him. और उनके लिए मेरे अंदर एक मान सम्मान आ गया। Oh, he continued speaking. और वो मेरे साथ बातचीत करने लगे। My dear daughter Gayatri, मेरी बेटी गायत्री, you are mine. तुम मेरे हो। I have purchased you with my own blood. मैंने तुझे खरीद लिया मेरे लहू से। You were in the power of darkness. तू उस दुष्ट आत्मा के सामर्थ के नीचे थी। I have purchased you by shedding my own blood. और मैंने तुझे खरीद लिया है मेरी लहू से। You are no more, you belong to that power of darkness. और तू आज से उस दुष्ट आत्मा के सामर्थ के नीचे नहीं है। You are mine. तुम मेरी हो। Isaiah 43:21. ईसाया की पुस्तक के 43 अध्याय और 21वां वचन में लिखा है, I have chosen you मैंने तुझे चुना है to declare my glory praise. ताकि तू मेरी महिमा प्रकट करे। You will go around the globe as a family. तुम पूरा परिवार के साथ सभी जगह जाओगे, पूरे सभी देश देश में जाओगे। And you will declare my glory. और तुम मेरी महिमा को प्रकट करोगे। You will declare my pride. मैंने जो किया है वो उसके बारे में बताओगे। You will declare my love. तुम मेरे प्रेम के बारे में बताओगे। That is the reason I have chosen you. इसी कारण मैंने तुम्हें चुना है। By allowing this to happen in your husband's life. और यह मैंने तुम्हारे पति के जीवन में ऐसे कराया है क्योंकि तुम मुझे जाने। By allowing this, you will accept me. क्योंकि मैंने इस प्रकार किया क्योंकि तुम
मेरा स्वीकार करोगे and I will be glorified through you. और तुम्हारे जीवन द्वारा मेरी महिमा होगी। Hallelujah. हालेलुया। The God's choice of choosing a person is unique. It differs from person to person. और परमेश्वर जिसका भी चुनाव करता है वह अलग तरीके से करता है। And that was the day I opened my heart to Jesus. और उसी दिन मैंने अपना दिल प्रभु यीशु के लिए खोल दिया। When I was baptized, I didn't give my heart to Jesus. जब मैंने बपतिस्मा लिया मैंने अपना दिल प्रभु यीशु को नहीं दिया। Just my name was changed from Gayatri to Catherine. सिर्फ मेरा तो नाम में ही बदलाव आ गया था, गायत्री से मैं कैथरीन बन गई। But nothing happened in my heart. पर मेरे जो दिल में कुछ भी नहीं हुआ। When I had a direct encounter with Jesus. और जब मैंने सम्मुख प्रभु यीशु को देखा, That too with a crucified Savior. और जब मैंने उसे क्रूस पर लटकाए हुए देखा, My heart bubbled towards God. जो मेरा हृदय है वो ये प्रभु की ओर बढ़ गया। Truly I accepted Him 100%. और सच्चाई से 100% मैंने उनका स्वीकार किया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। A great burden left my heart. और मेरा जो भी बोझ था वो सब मुझे छोड़ के चला गया। I started developing a hope. मेरे अंदर एक आशा पैदा हुई। I don't want to seek the remedy for my husband anymore from anywhere. अब मुझे दूसरे कहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है मेरे पति का हाल चाल में बदलाव आने के लिए। My Jesus is here to deliver my husband free from all these evil attacks. मेरा यीशु आ गया, उसने ही मेरे पति को हर एक दुष्ट आत्माओं से मुक्त कर दिया। Because he had paid the price on the cross. क्योंकि उन्होंने उस क्रूस पर मेरे लिए जीवन बलिदान किया। As we read it in Colossians chapter 2 verses 14 and 15. जैसे हम कोलोसिया की पुस्तक 2वां अध्याय 13 और 14वां वचन में पढ़ते हैं, We will have a victorious life in Christ. क्योंकि हमारा एक विजय जीवन है मसीह में। The same week, और उसी सप्ताह we again went to Jesus Calls. हम फिर जीसस कॉल्स गए There we didn't see DJ's uncle there. और वहाँ पर हमें डीजीएस अंकल फिर नहीं दिखे। We saw Paul Dinakaran preaching on a Friday service over there. और शुक्रवार के दिन थे, हमने देखा कि भाई पॉल दिनकरन वहाँ पर प्रचार कर रहे थे। When he was preaching in the second point, he stopped that preaching. और जब वो दूसरा मुद्दा के बारे में प्रचार कर रहे थे अचानक वहाँ पर वो रुक गए। Out of the Holy Spirit, he started declaring. और पवित्र आत्मा ने जैसे उन्हें कहा वो वैसे कहने लगे। My Spirit of the Lord is not allowing me to move further. हाँ, पवित्र आत्मा मुझे आगे जाने के लिए नहीं कह रहा है। Who is this Gayatri in this crowd? वो कहने लगा, अरे यहाँ पर इस जगह पर गायत्री कौन है? Repeatedly, the Spirit of God is bringing this name before me. और बार बार पवित्र आत्मा यही नाम दोहरा रहा है, गायत्री। So he is telling Gayatri, you are a chosen vessel for God. और वो फिर से कहने लगा कि गायत्री प्रभु ने तुम्हें चुना है। Again through his mouth I am hearing Isaiah 43:21. और फिर से मैंने उनके मुंह से ईसाया की पुस्तक 43 अध्याय और 21वां वचन को सुना। You are a chosen vessel to declare my glory, love and praise. कि आज परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप मेरी महिमा और मैंने जो कुछ किया है उसके बारे में बताओगे। Hallelujah. हालेलुया। I was again so reassured. और मुझे फिर से ही पता चला था I was feel like flying. और मुझे ऐसा लग रहा था मैं कहीं उड़ जाऊं। There is somebody who can care for me. कोई तो है जो मेरे बारे में सोचता है। Oh, there is somebody who can rescue me. और कोई तो है जो मुझे छुटकारा दे सकता है। Oh, somebody there who can transform our lives. और कोई तो है जो हमारे जीवन में बदलाव ले आ Who सकता is है। nothing but Jesus, our Lord and Savior. वो कोई नहीं पर प्रभु यीशु हमारा तारनहारा है। We came home. हम घर आए I explained everything, all that happened. My husband and family. और मैंने घर में सब कुछ बता दिया, सभी को, मेरे पति को भी बता दिया और बच्चों को भी बता दिया। Immediately we took off every idol and everything that represents the idols which we were placing in the showcases. और मेरे घर में जो भी मूर्तियां मैंने घर में रखी थी वो सब मैंने उठा लिया। Everything we packed and we threw it in the ocean. और सब कुछ हमने इकट्ठा कर दिया और उसे उठाकर समुद्र में फेंक दिया। Totally we resurrendered our life unto God. और हमने परिपूर्णता से अपना जीवन परमेश्वर को अर्पण कर दिया। 100% our life we committed to Jesus. और 100% हमने हमारा जीवन प्रभु यीशु के हाथ में सौंप दिया।
and we started dedicating our life, और जैसे हमने अपने आप को प्रभु के हाथ में अर्पण कर दिया, I started developing to know more about this Jesus. और मैं यीशु के बारे में और जानना चाहती थी। Oh, who is this Jesus? हाँ, ये यीशु कौन है? If he is God, why he was seeing him in a crucified status? और मैं अगर वो परमेश्वर है तो मैं उसे उस सूली पर लटकाए हुए क्यों देखती हूँ? Will God be like this? क्या परमेश्वर ऐसा हो सकता है? We started developing great desire to know more about him. और मेरे अंदर एक प्रकार की इच्छा तैयार हो गई कि मैं उसे और जानना चाहती हूँ। We went and bought on Bible. और हमने जाके एक बाइबल खरीद लिया I started reading. और मैं बाइबल पढ़ने लगी। No one was speaking to us. कोई हमारे साथ बात नहीं करता, God started speaking to me through this word. पर इस बाइबल द्वारा, इस पवित्र बाइबल द्वारा ही परमेश्वर मेरे साथ बातें करने लगा। As a person speaking to me, जैसे एक व्यक्ति मेरे से बात कर रहा है, it started giving more hope in my life. वो मेरे अंदर और आशा बढ़ने लगी। This Bible has become a very great strength and part of my life. यह पवित्र बाइबल मेरे जीवन की ताकत और सबसे मुख्य चीज बन चुकी है। And God started teaching me, guiding me, counseling me, showing me and revealing himself through this word of God. और परमेश्वर उसके वचन द्वारा मेरे साथ बातचीत करता, मुझे मार्गदर्शन करता, मुझे क्या करना है, मुझे सलाह देता, और बाइबल ही मेरे लिए सब कुछ बन चुकी थी। Hallelujah. हालेलुया। So from Jesus calls prayer tower, prayer warriors taught a simple prayer to me. और जो जीसस कॉल्स के जो प्रेयर वॉरियर से उन्होंने एक साधारण सी प्रार्थना करना मुझे सिखाया Inside my room, और मेरे रूम के भीतर as I was keeping on praising and thanking him by using these verses, जैसे मैं अपने रूम में इस प्रकार प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना और इस प्रकार करते रही, something unique experience I gone through. और मुझे प्रभु ने एक नया प्रकार का अनुभव दिया। I was kneeling down and stretching out hands and I was keeping on confessing, thank you Jesus, praise you Jesus, victory in the blood of Jesus. और जब मैं अपने घुटने टेक कर ऐसे कहने लगी, धन्यवाद प्रभु, मैं तेरी स्तुति करती हूँ, तेरी आराधना करती हूँ, तुझे धन्यवाद देती हूँ, I started rolling down. Some power has struck me. और कोई तो सामर्थ ने आके मुझे छू लिया और मैं जमीन पर गिड़गिड़ाने लगी। My tongue started twisting. और मेरी जो जबान थी वो ट्विस्ट हो गई। Something new languages I started speaking. और नई प्रकार की भाषाएं मैं बोलने लगी। I was not aware of it. मुझे पता नहीं ये क्या है, From where this type of tongues coming? और मुझे पता नहीं ये किस प्रकार की भाषा मेरे मुंह से निकल रही है। I was simply rolling in my room. मैं मेरे रूम में यहाँ से वहाँ गिड़गिड़ा रही थी। The power was so heavy on me. प्रभु का सामर्थ इतना महान मेरे ऊपर उतर आया। Then I realized that this is the anointing of the Holy Spirit. और तब मुझे पता लगा कि यह पवित्र आत्मा का अभिषेक है। Hallelujah. हालेलुया। Which strengthened me. और जिसने मुझे ताकत दी, Which strengthened my inner soul. जो मेरे अंदर के आत्मा को ताकत देते गया। As a family, we again committed. और सारा हम परिवार मिलकर हमने फिर से अपने आप को अर्पण किया। Once again, God anointed my husband. God anointed my children who were 10 and 7 in the age. और परमेश्वर ने मेरे पति को अभिषेक किया। प्रभु ने मेरे दोनों बच्चों को अभिषेक किया जो सिर्फ 10 साल और 7 साल की थी। They started seeing the visions. और वो दृष्टांत देखने लगे। The Spirit of God started speaking through all the 4 of us. और पवित्र आत्मा हम चारों के द्वारा बातचीत करने लगे। From that time till today, the Spirit of God is guiding us day by day for whatever we are looking for Him. और उस समय से हमने देखा है कि पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करता है, किस राह में हमने चलना है, हमने क्या करना है। Totally our life was transformed. और हमारा जीवन परिपूर्णता से बदल गया। This is not only a testimony. यह एक गवाही ही नहीं है। Isaiah 43:12 says, ईसाया की पुस्तक 43 अध्याय और 12वां वचन में लिखा है, it's not enough that you share your testimony. यह सिर्फ काफी नहीं है कि तुम तुम्हारी गवाही के बारे में बताइए। God is telling that you are a witness to me. कि परमेश्वर कहता है कि आप मेरे लिए एक साक्षी बन के रहो, I am your God. कि मैं
तुम्हारा परमेश्वर हूँ। The one who are hearing me, जो भी मुझे सुन रहे हैं, God is choosing you to live as a witness for God. परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप उनके बारे में दूसरों को बताए। It's not simply sharing little testimony. सिर्फ छोटी छोटी गवाहियां ही हम नहीं बताना है। There is no use in simply sharing the testimony, but our lives are not changed, which can please God and which please the people as well. और हमने ऐसे ही छोटी छोटी गवाहियां ही नहीं बतानी है, पर हमारा जीवन इस प्रकार होना है, हमारा जीवन ही एक गवाही होना है कि जब लोग हमारे जीवन को देखेंगे, हमारे जीवन के बदलाव में देखे हैं। Yes, they should see Jesus in you. उन्होंने यीशु को देखना है आपके अंदर। You should reveal Jesus from you. आपने यीशु को प्रकट करना है आपके जीवन के द्वारा। Just because in my early age I was not able to see a life of witness in the life of the Christian people. क्योंकि मैंने जब मेरे बचपन में देखा मसीह में है, उनका जीवन कुछ सही नहीं था, इसी कारण मेरे अंदर प्रभु यीशु के लिए एक नफरत पैदा हो चुकी थी। Now the Lord inspired us. और अब यीशु ने हमें प्रोत्साहन किया। It's not enough that you accept Jesus as your Lord. और ये सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि आपने यीशु को स्वीकारना है, But you should reveal Jesus through your life. आपने यीशु को प्रकट करना है आपके जीवन के द्वारा। Your inner man should change. आपका जो अंदर का व्यक्ति है उसने बदलाव आनी है। Through your speech, through your actions, you should reveal Jesus. आपके जो मुंह से जो वचन आते हैं, आप किस प्रकार बर्ताव करते, वो ही क्रिस्त प्रकट होता है या नहीं। The life which pleases God. वह जीवन जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, Through which people can understand that you are the child of God. और आपका जीवन देखकर लोग इस प्रकार कहेंगे कि ये ही यीशु की संतान है। That is a life of witness. और इसे ही विटनेस या साक्षी का लाइफ कहते हैं। God gave us the grace to live a life of witness since then. परमेश्वर ने हमें कृपा दी कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु के लिए एक गवाही, एक साक्ष्य बने रहें। Now, as a family, God is helping us to serve the Lord like a Joshua family. यशुआ का परिवार किस प्रकार था, उसी प्रकार हमारा परिवार हम सब मिलकर प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। Now, God has blessed us with our own ministry. और प्रभु ने हमें हमारी सेवकाई दी है। We continue doing the ministry with Jesus calls. और हम जीसस कॉल के साथ मिलजुल कर सेवकाई करते हैं। Still now we are doing. और अभी भी हम करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। God wants to use you. परमेश्वर आपका उपयोग करना चाहता है। God wants to be glorified through your life. परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। We are as a family, now we serve the Lord. और हम सारा परिवार मिलकर हम प्रभु की सेवकाई करते हैं। And more we are doing for the Lord, whatever God has commanded us to do. और हम ज्यादा करना चाहते हैं जो भी आदेश परमेश्वर ने हमें दिया है। This is a part of our testimony. और यही हमारी गवाही का एक छोटा सा हिस्सा है। There is a lot more to say. और बहुत चीज है जो हम आपसे बांटना चाहते हैं। How my husband totally got delivered. और कैसे परमेश्वर ने मेरे पति को पूरी तरह से मुक्त कर दिया। How you are in the hand of God as a useful vessel. और कैसे हम प्रभु के हाथ में एक पात्र है जो से प्रभु उपयोग कर रहा है। If God gives us then one more opportunity, अगर परमेश्वर हमें और एक संदर्भ दे, definitely we will come and share for the glory of God. हाँ, हम जरूर इसे आपके बीच में बांटेंगे प्रभु की महिमा के लिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You are so privileged. हमें कितना बड़ा संदर्भ प्रभु ने दिया है। The same God who transformed my life. जिस परमेश्वर ने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया, From darkness into light. अंधेरे में से प्रकाश में ले आया। Same God, those who are in darkness. और वही परमेश्वर आज जो भी अंधकार में है, Definitely He is going to bring your life into the light. हाँ, निश्चित रूप से वो
आपको भी उस प्रकाश में ले आएगा। And God will make you used to bring the people who are in darkness into the light of Jesus. और परमेश्वर आपका भी उपयोग करेगा जो अंधेरे में है उन्हें प्रकाश में लाने। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. May हालेलुया। God's name alone be glorified. प्रभु के नाम की महिमा हो। I give all glory, honor and praise unto Jesus. सारी महिमा और स्तुति मैं प्रभु यीशु को देती हूँ। I commit you as well in the hand of the Lord. और मैं आपको भी प्रभु के हाथ में स्वाधीन कर देती हूँ। God is going to be glorified through you as well. पर प्रभु आपके द्वारा महिमा पाएगा। Hallelujah. हालेलुया। God bless you each and everyone who have heard this testimony. जो भी इस गवाही को सुन रहे हैं प्रभु आपको आशीषित रखे। Amen. आमेन, Amen. आमेन।